بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہاری اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ امام بن رجب چمبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا، اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کئی احادیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی ہے، جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر اور محنت مزدوری سے حاصل کرتا ہے۔ بیشتر انبیاء اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سود کاتا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے۔ حضرت مقدام بن معد یکرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک موچی کا قصہ۔ ایک موچی نے کیسے محنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا، اور وہ شخص موچی سے کیسے ایک مالدار امیر ترین شخص بن گیا، جسے اللہ نے ہر طرح کی آسائشیں دے رکھی تھی۔ اب یہ سب اس کی محنت کا اور اللہ پر توکل کا ہی نتیجہ تھا۔ برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا اور دل کا بہت زیادہ امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں اس کے پاس آ کر چو چو کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی مسافر نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی
कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मूसा ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं ज़ुबानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। इसे आज बहुत खुशी थी। इसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। इसका जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता था। ये आयत तो इसे इतनी प्यारी लगती कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूते मुरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन इसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया। इसे भूख लग रही थी, साथ में इसे अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में भी कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए थे। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज़ ले आती। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेक बख्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और इसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर देख लें। अगर आज भी इनको खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगी। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा क्यों ना मांग कर खाना लाकर मज़े से उड़ाऊं। अरे बदबख्त, मेहनत कर पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है। तुम जैसे मुफ्त खोरे पर पैसा क्यों ज़ाया करूं? अब जा, भाग जा। मोची वहीं सारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज़ देकर कहा, अरे ज़रा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर निशावर करूं। 3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्का खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया।
इस हाल में घर जाने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर इससे पहले तो पेशानी साफ़ की और फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो मोची बेजारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। इसने मोची की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने और इसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। इसने वज़ू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर ये मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली थी। इस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने इससे खाना खरीदा और घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में इसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मूसा ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची ही कुछ अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। इसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लगवा कर अपने मकान पर लगवा दी। इसके यहाँ कई नौकर काम किया करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची इसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और इसकी मदद करता। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थी वो इन्हें भी भूला नहीं था। वो अब भी हर रोज़ इन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा कांप रहा था। नौकर इसे अंदर ले आया और इसे कपड़े ला कर दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर इसे गरम गरम खाना ला कर दे दिया। इस आदमी की यह हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तफाक से मोची इस वक्त जाग रहा था। इसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? इसने कहा, हजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है इनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फ़कीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। इसका बड़ा मकान था, इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर इसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद फ़कीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं इसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने इससे कुछ रुपए मांगे पर इसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत इसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो इसने देखा कि इसका वही मखरूर पड़ोसी बैठा है जिसने इसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने इसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर इस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया हूँ।
दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, अपना सर छुपाने को जगह है और ना ही कोई आसरा। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गरूर करता है इसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। इसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज़ है, इस पर गरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा और तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब इसके हाथ में है। हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।